Morning, student of class 10th. So 10th class, the previous day we discussed in revision, and in revision we have discussed about nature of fruits. In nature of fruits, we completed till question number 2nd and exercise 3.5. So we discussed in question number 3rd. Exercise is given 3.5. Question number given 3rd. Find the value of k. Question: find k if given quantity has given quadratic equation has no real roots. No real roots. In first, kx square plus 2x plus 1 equal to 0. Then we compare it. ax square bx plus c0 a की वैल्यू a हो गई, b2 और c क्या हो गया, roots are no real मतलब इमेजिनरी, और इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, b square minus 4ac less than 0. What is value of b? 2 is 4ak c is 1 less than 4 minus 4k less than 0, so 4 less than 4, so 4 by 1 less than k, so 1 less than k, या ये बोल दें कि k is greater than 1. एक ही बात है. What is value of k? That is k is greater than 1. The same process you can do its second and third. Okay. Then in question number 4, find the value of k is the equation. Equation is given x square plus 5kx plus 16 equal to 0. So student of class 10, that is one mistake, has real and distinct root था, अपन ने इसमें लिखा no real roots. तो no real roots के लिए तो यही होगी 1 मिनट. हम इस क्वेश्चन को दो तरह से एक्सप्लेन कर किए जा रहे हैं, ठीक है, इसी में. So student of class 10, if given no real roots, then we can use this condition. Same question, if given if roots are real and distinct. No real roots है तो ये कंडीशन यूज करते हैं. और यही क्वेश्चन में तो ये दीजिए रूट्स कैसे रियल है, डिस्टेंट रियल है और डिफरेंट है, तो क्या यूज करेंगे उसके बाद. इक्वेशन इज इन kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. कंपेयर करें ax स्क्वायर bx प्लस c. a है a, b है 2 और c की वैल्यू क्या आ गई. अब रूट्स क्या है, इसी क्वेश्चन को बताया. रूट्स आर रियल and distinct.
स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0. Then b is given 2c. 4 8 k c क्या है 1 greater than. तो 4 minus 4k greater than. तो 4 greater than 4k. तो डिवाइड करेंगे 4 and 4 greater than k. 1 greater than k बोलते हैं या k less than क्या बोलते हैं. तो if roots are imaginary, same question, k की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए. if roots are real and distant तो 1 की वैल्यू k की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए. तो क्वेश्चन कोई भी हो हम इन दोनों कांसेप्ट के अकॉर्डिंग टू चलना है. नो रियल रूट्स then b square minus 4ac less than 0, and if roots are real and distant then k less than. Okay, in this way you can do given part of third and fourth question. Okay, we explain the last question of this exercise, that is the question number 5th. Let's see question number 5th. See what most important. Is question number 5th. Given roots of quadratic equation is given. b minus c x square c minus 8x plus a minus b equal to 0 are real and equal. Then prove that we have need to prove that 2b equal to a plus c. In this quadratic equation have roots are real and equal, then we have need to prove that 2b equal to a plus c. Then see, देखिए कैसे प्रूव करेंगे उसके बाद करते हैं. Now first we have need its quadratic equation 3 minus c x square c minus ax and a minus b x square. आप इसकी कंपैरिजन करेंगे ax square bx plus c equal to 0. ठीक है, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी b माइनस, b की वैल्यू c माइनस and c की वैल्यू क्या होगी such that roots are real and equal. अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है तो ये क्या हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो गया बेटा c. b की वैल्यू हमारे पास क्या है c माइनस a की वैल्यू क्या है b माइनस और c की वैल्यू a माइनस b. ओके, इसको अपन कर देते हैं c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2c माइनस जब ब्रैकेट लगा दे तो इन दोनों को इंटू कर दे क्या हो गया माइनस 4 बार ये क्या हो गया ab माइनस ca माइनस k माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस bc इक्वल टू 0. तो बड़ा इसमें ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एवरी टर्म से. अब बड़ा जब 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर क्या क्वेश्चन बन गया c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2c
माइनस क्या है 4ab, माइनस माइनस क्या है 4ca, और माइनस माइनस क्या है 4b स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आ गया माइनस 4bc, और इधर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc, ये है माइनस 2ca प्लस 4ca, क्या बचेगा 2ca। अब देखो नेगेटिव कौन सी टर्म इसमें, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव जो है तो उसमें कॉमन की सर्च करें तो कॉमन हमारे पास क्या मिल रहा है, यानी कि b प्रेजेंट है तो टर्म्स क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, तो आप क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस माइनस 2b स्क्वायर, ये क्या हो गया प्लस 2ab, 2 a की वैल्यू हमारे पास a है, b की वैल्यू माइनस 2 प्लस 2bc, 2 तो बाहर है, bc की वैल्यू माइनस 2b है और c की वैल्यू c, ये आ जाएगा इट इज ऑफ एंड 2c एंड d। आप जानते हैं a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, इसके अकॉर्डिंग टू अगर हम यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा c प्लस a माइनस 2b होल स्क्वायर 0, तो जब 0 का रूट लेंगे तो c प्लस a माइनस 2b 0, तो c प्लस a इक्वल टू क्या हो गया ट्रांसपोज 0, या 2b इक्वल टू c प्लस a। इन दिस वे एक्सरसाइज 3.5 भी कंप्लीटेड। ओके, तो इस तरह बेटा हमने एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट कर ली। अब 3.6 में आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। आप इसका मतलब फर्स्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर में समझ चुके हैं व्हाट इज द एचसीएफ, व्हाट इज द एलसीएम। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो उन सभी फैक्टर का कॉम्बिनेशन जो सभी में प्रेजेंट हो, कॉमन हो, और एचसीएफ का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सारे फैक्टर लेने हैं लेकिन कॉमन फैक्टर को केवल एक बार ही हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम की हमें बात करनी है, तो हम डायरेक्टली इंटर कर रहे हैं एक्सरसाइज इसमें 3.6। ठीक है, समझ देना बेटा 3.6 की बात करते हैं। Like this first question, find LCM, of given expressions. First part is given 24x square yz, and second है 27 x की पावर 4 y स्क्वायर z। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है और इससे हमें एलसीएम इसमें फाइंड आउट करना है। समझ बेटा। तो फर्स्ट वी हैव नीड टू मेक प्राइम, इसको आप क्या लिख सकते हैं 24 x इंटू एक्स, 24 के लिए हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड x इंटू एक्स y इंटू सेकेंड है 27 x की पावर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 9 9 27। अब इसमें x स्क्वायर इंटू
एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा वाई इंटू क्या हो गया जेड इंटू जेड। बेटा हमें क्या निकालना है, इसमें हमें फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सारे फैक्टर लेने लेकिन कॉमन को एक बार। तो पहले 2 को राइट करें, 3 टाइम 2, एक 3 क्या था कॉमन था, एक 3 कॉमन है, 2 3 और लिख दिए ये वाले। अब क्या बचा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले एक्स कॉमन हो, वाई इंटू वाई होगा और जेड इंटू क्या हो गया जेड। ठीक है, इसमें भी कॉमन वाले भी आए, क्या होगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54, 2 जा 108 और 2 जा 200। ये आ गया x की पावर 4 y स्क्वायर, ये क्या हो गया। That's clear? So student of class 10th, in this way we enter in exercise 3.6. So we discuss in other question on next day on next videos. Okay, thank you so much.